نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المطين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ بارگاہ رسالت میں درود پاک کی ڈالیں نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ تعالی علی النبی الأمی وعلیہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سو امام آیا اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراد کلید کرم کشا غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، اور یاد آ جائے خدا اس کو بلا شک بالیقین، یاد آ جائے خدا اس کو بلا شک بالیقین، دیکھ لے جو تیری صورت حضرت جنید شاہ کی۔ میرے پیارے دوستو اور عزیزو، بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے اس لیے کہ بس حاضری کی غرض سے، ویسے تو میری حاضری ہر نوچندی کو ہوا کرتی ہے، یہ حضرت کا کرم ہے کہ وہ بلوا لیتے ہیں اور اپنا کام کرا لیتے ہیں۔ اور آج دیکھیے مبین بابا نے اسی لیے آج بریانی کا پروگرام رکھا ہے کہ لوگ کم سے کم بریانی کا نام سن کے آئیں گے ذکر پاک میں، لیکن بریانی کے بعد بھی وہی حال ہے کہ بس چند لوگ ہی رہ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ حضرت کی محبت کی بات ہے، اور کل ہم جاتے ہیں 10-15 دیگ بابا بنے گا، کل 10-15 دیگ بنے گا، وہ دیکھیے گا ٹوٹ پڑیں گے لوگ۔ تو ہماری قوم جی کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی۔ تو میرے پیارے دوستوں اور عزیزو، اس لیے ہم آتے ہیں مزارات پہ تو بس اس غرض سے کہ بابا کے دربار میں جائیں اور اتنا یہ زیادہ دے دیں کہ پھر دوبارہ آنے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن بہرحال ان سے جب آپ کا لگاؤ رہے گا، رشتہ قائم رہے گا، تو آپ کی ایمان بھی سلامت رہے گا، اور اگر ان سے دوری بن جائے گی تو ایمان مذبذب میں پڑ جائے گا۔ اس لیے اللہ والوں سے قرب حاصل کیا کرو، قریب رہا کرو۔ میرے پیارے دوستوں اور عزیزو، بہت لمبی چوڑی بات نہ کر کے، یہ اللہ والے اگر زندہ رہتے ہیں تب بھی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اور قبر میں رہتے ہیں تب بھی تبلیغ کا کام کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایسی تبلیغ نہیں کہ جو مسلمان کو مسلمان بناتے ہیں، بلکہ یہ اللہ والے دل پہ اپنا مہر جما دیتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں خود بخود وہ بندہ سربہ سجود ہونے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک چور جاتا ہے، اور بہت ہی پکا چور تھا۔ وہ گیا چوری کرنے کے لیے، چوری کرنے کے بعد سے غوث پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے، کہتا ہے حضور مجھے مرید کر لیجئے، حضور مجھے مرید کر لیجئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے مرید کر لوں گا، لیکن وہ چور کہنے لگا حضور میری ایک شرط ہے کہ میں بھی آپ سے مرید بھی ہوں گا اور چوری بھی کروں گا۔ حضور میں شراب بھی پیتا ہوں، شراب بھی پیوں گا، اور آپ کو مرید بھی کرنا ہوگا۔ آپ جلال میں آ کر کہتے ہیں ارے مردود نکل جا میری بارگاہ سے، لیکن چور بڑا ہوشیار تھا، کہنے لگا حضور آپ مجھے مرید کر لیجئے، آپ کے امی جان ام الخیر فاطمہ کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں، آپ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں، آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومی کا واسطہ دے رہا ہوں، حضور مجھے
मुरीद कर लीजिए। तब गौसे आजम जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम चोर तो बहुत चालाक हो, अब मेरी भी एक शर्त तुमको माननी होगी। कहा हुजूर जब आपने मेरी शर्त को कबूल कर लिया तो मैं भी आपके शर्त को कबूल कर लेता हूँ। कहा गौसे आजम जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि देखो मैं मुरीद कर लूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो अजान दे देना, जब नमाज का वक्त हो जाए तो अजान दे देना। चोर कहने लगा ये कौन सी बड़ी बात है, अरे दिन में नमाज अजान दे दिया करूंगा, रात में चोरियां किया करूंगा। लेकिन गौसे आजम ने ये डायरेक्ट नहीं कहा कि जाओ तुमको मैं मुरीद कर लेता हूँ, लेकिन जाओ तुम अल्लाह की बारगाह में सर्वा सुजूद हो जाना। इसलिए कि गौसे आजम देख रहे थे कि इसके दिल पर वो काला धब्बा है, जब तक वो काला धब्बा मिट नहीं जाएगा वो बारगाह रब्बुल इज्जत में सर्व सुजूद नहीं कर सकता, वो अपने दिल को रब्बुल आलमीन की बारगाह में झुक नहीं सकता। जब ये काला धब्बा मिट जाएगा तो खुद ब खुद ये रब की बारगाह में झुकना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद वो रब की बारगाह में सर झुकाना शुरू कर देगा। मेरे प्यारे दोस्तों और अजीजों, हुजूर सैयदना गौसे आजम जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस चोर को मुरीद कर लिया। वो मुरीद करने के बाद से वो चोर घर पहुंचता है, जोहर का वक्त होता है, जल्दी जल्दी वजू कर लेता है। वजू करने के बाद से मस्जिद नहीं जाता, मस्जिद में नहीं जाता, बल्कि बारामदे में जाकर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर देता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद कर देता है। बीवी समझी अरे कोई फकीर मेरे दरवाजे पर आकर आजान दे रहा है, लेकिन जब घर के अंदर घर के बाहर आती है तो बरामदे में देख रही है कि ये तो मेरा शौहर ही अजान दे रहा है, ये कैसे बदल गया, ये अल्लाह का नाम लेने वाला कैसे हो गया, ये तो चोरियां किया करता था, शराब पिया करता था, दुनिया की हर बुराइयों को किया करता था, लेकिन ये कैसे अजान देना शुरू कर दिया। जोहर की अजान दे दिया, जोहर की अजान देने के बाद से असर का वक्त आता है, असर का वक्त आया, वजू किया, अजान दे दिया, असर का वक्त खत्म हो गया, नमाज नहीं पढ़ता है। अब मगरिब का वक्त आ जाता है, मगरिब के वक्त वजू करता है, घर ही में अजान दे देता है, नमाज नहीं पढ़ता है। और इशा का वक्त आ जाता है, इशा के वक्त में वजू बनाता है, अजान दे देता है, नमाज नहीं पढ़ता। शाम को जब बीवी के साथ सोने के लिए बिस्तर पे जाता है तो बीवी कहती है अरे अजान देते हो तो कम से कम नमाज भी पढ़ लिया करो, अगर अजान देने का ज्यादा शौक है तो मस्जिद में जाके अजान दिया करो। इसलिए कि वो समझ रहा था कि मस्जिद में जाएंगे अजान देंगे तो नमाज भी पढ़ना पड़ जाएगा, मस्जिद में जाएंगे अजान देंगे तो नमाज भी पढ़ना पड़ जाएगा, इसलिए मैं घर ही पे अजान दूंगा। लेकिन वो इसलिए नहीं कह रहा था, गौसे आजम की निगाहे वलायत देख चुकी थी ये इसके दिल पे जो काला धब्बा बन गया है, गुनाहों का मैल जमा हुआ है, जब तक वो अल्लाह का नाम लेते लेते वो गुनाहों का मैल धुल नहीं जाएगा उस वक्त तक वो रब के सामने झुक नहीं सकता, और झुकेगा भी तो वो चाशनी वो लज्जत उसको मैसर नहीं होगी। इसलिए गौसे आजम देख रहे थे कि इसको पहले अजान देकर अल्लाह का नाम दिलवाया जाए ताकि ये काला धब्बा जो इसके सीने पे लगा हुआ है वो खत्म हो जाएगा तो खुद ब खुद ये झुकना शुरू हो जाएगा। एक दिन हो गया, गुजर गया, दूसरा दिन भी वही काम करता है, तीसरे दिन भी यही काम करता है। अब बीवी कहती है अरे घर में खाने के लिए आटा चावल नहीं है, जाओ कहीं से आटा चावल लाओ। उसने कहा चलो आज मैं चोरी करके निकलता हूँ। आज रात में जब पूरी दुनिया सो जाती है तो चोरी के गरज से निकलता है, ऐशा की अजान दे देता है। ऐशा की अजान देने के बाद से पैदल चलते चलते एक रईस ताजिर के घर में सेन फोड़ता है, अंदर घुस जाता है। अंदर घुस जाने के बाद से सारे माल असबाब को इकट्ठा करता है, बोरिये में भरता है। बोरिये में भरते भरते देख रहा है कि फजर का वक्त होने जा रहा है। फौरन उस बोरिये को, उस माल को निकालता है और बाहर माल को निकालने के बाद से उसी ताजिर के बाहर बरामदे में उस माल को रख देता है। जाकर कुएं पे जाता है, डोल से पानी निकालता है, वजू बनाता है। वजू बनाने के बाद से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर देता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाएं बुलंद कर देता है। अब देखिए
पूरे गांव वाले मोहल्ले वाले जग जाते हैं कि ये हमारे मोहल्ले में कौन अल्लाह वाला आ गया जो हम लोगों को जगा रहा है, रब की तरफ बुला रहा है। देखा कि चलो अजान दे के इस मालो असबाब को लेकर हम यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे, यहाँ से फरार हो जाएंगे, लेकिन वहीं से अब उसकी दिल की दुनिया बदलने लगती है। उसने अजान दिया तो देखा बहुत से लोग आ जाते हैं, फौरन जाते हैं और वजू करके सारे लोग मोहल्ले के आ जाते हैं, चटाइया मुसल्ला बिछाते हैं। मुसल्ला बिछाने के बाद से अब कहते हैं हुजूर देखा कि सब लोग आ गए, अब जल्दी जल्दी वो भी सुन्नत पढ़ना शुरू कर देता है। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ा था, सुन्नत फजर की अदा करना शुरू कर देता है। और जब सुन्नत पढ़ लिया तो सारे गांव मोहल्ले वाले कहते हैं हुजूर आज आप ही के पीछे हम लोग इमामत करेंगे, हुजूर आज आप ही के पीछे हम लोग इमामत करेंगे। उस चोर ने कहा अरे मैं इमाम नहीं हूँ, मैं तो एक चोर हूँ, मैं तो एक चोर हूँ। लेकिन मोहल्ले वाले और उसके घर वाले कहते हैं इसलिए कि तुम चोर हो तो चोर का काम तो यह होता है कि वो मालो असबाब लेकर घर से फरार हो जाता है, घर से भाग जाया करता है, घर वालों को जगाता नहीं है, रब की तरफ बुलाता नहीं है, रब की बारगाह में झुकने की दावत नहीं देता है। इसलिए आपकी तो ये मजबूरी है, आप ये सोच रहे हैं कि हम किसी बहाने से यहाँ से निकल जाएं, लेकिन आप ही के पीछे हम लोग नमाज पढ़ेंगे। उधर गौसे आजम अपने खानकाह गौसिया में देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मैंने उसकी एक शर्त मानकर नहीं फंसा, वो हमारी मानकर फंस गया, वो हमारी एक शर्त मानकर फंस गया। मुस्कुरा रहे हैं गौसे आजम कि पहले तो नमाज नहीं पढ़ता था, अब आज से इमाम बनना शुरू हो गया, आज से इमामत करना शुरू कर दिया। चोर ने इमामत किया, लोगों ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद से सलाम फेरने के बाद से कोई हाथ चूम रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई पैरों को चूम रहा है। हुजूर आप तो बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे हैं, आज हम लोग चाहते हैं कि आपके हाथों पर तौबा कर लें और आपके हाथों पर तौबा करके रब की बारगाह में आज से शुरू हो जाए। वो चोर कहने लगा अरे चलो मैं तुमको ऐसे बारगाह में ले चल रहा हूँ जो अगर चोर है तो वो अल्लाह का वली बना देता है, अगर उसकी बारगाह में चोर चोरी करने के गरज से जाता है तो वो ऐसा फकीर है कि दिल की दुनिया ही को बदल देता है। और जो चोरी से बाद आ जाता है, सारी परेशानियों से बाद आकर सारी बुराइयों को खत्म करके रब्बुल आलमीन की बारगाह में झुकना शुरू हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों और अजीजों, सारे मोहल्ले वालों को लेकर गौसे पाक की बारगाह में वो चोर आगे आगे जा रहा है, वो चोर आगे आगे जा रहा है, लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। गौसे आजम मुस्कुरा रहे हैं कि पहले तो वो इमाम नहीं बना था, पहले तो वो नमाज नहीं पढ़ा था, अब वो इमाम बनता हुआ नजर आ रहा है, अब इमाम बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों और अजीजों, गौसे आजम ने सारे को सब लोगों को मुरीद किया, अब उसी दिन से वो नमाजी बन जाता है। सुभान अल्लाह। इसलिए दिल का धब्बा जब खत्म हो गया,